आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से पूर्ण सहमत हूं। उन्होंने कहा था, मैं खेल को ऐसी वस्तु के रूप में नहीं देखता जो केवल शरीर को मजबूत करता है। मैं इसे शिक्षा के एक उपकरण के रूप में देखता हूं जो मस्तिष्क को जागृत करता है और अनुशासन की संस्कृति लाता है। सभी को नमस्कार। मैं अजीत कुमार सिंह, हिंदी शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय आइजोल द्वारा आयोजित आभासी खेल दिवस महोत्सव में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि विदित है कि आज 29 अगस्त को हम मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस कड़ी में मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री विश्वनाथ नामदम जी को आमंत्रित करता हूं। स्वागत है। Well, hello everyone, dear students and respected parents. Let me first of all wish you on this very important day, which is the National Sports Day. Now, before we go any further, let me share with you some interesting facts about this day. 29th August is celebrated as the National Sports Day because it happens to be the birth anniversary of Major Dhyan Chand. Now, some of the students may be wondering who is Major Dhyan Chand. Well, let me tell you that he was a legendary hockey player who was part of the Indian national hockey team that won the Olympic gold medals in the years 1928, 1932 and 1936. That is 3 times in a row. Another interesting fact about this day is that it was celebrated for the first time only in the year 2012. That's just 10 years ago. One more interesting thing about this day is that, one more interesting thing about Major Dhyan Chand is that, this year the government of India has announced that the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, which is given to outstanding sports persons every year, and which is considered to be extremely prestigious, has now been renamed as the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award from this year onwards. Now, coming to the day itself, I think we all need to understand some of the reasons why we celebrate this day and why we need to celebrate this day. Sports is one of the few areas where things like religion, caste, class, social status and the like do not matter. What matters in sports, though, is the spirit of sportsmanship, of competitiveness, of fair play. Playing sports can also develop in us so many desirable qualities apart from making us physically fit and mentally stable and balanced. These qualities that I'm talking about include self-discipline, game spirit, team spirit, tolerance, and of course patience. Here I would like to encourage all of you, students, parents and teachers alike, to spare some time. You should spare some time every day for sports. Any sport for that matter. There are so many sports that you can choose from. If you don't like outdoor sports, you can play indoor sports. If you don't like outdoor sports, you can play indoor sports like badminton, like table tennis, chess, etc. And if you like team sports, you can play cricket, you can play football, you can play rugby. There are so many sports that you can choose from. Of course, on a lighter note, when I speak about sports, I'm not referring to video games that you play on your mobile phones or smart devices. They may have some benefits, but I firmly believe that the disadvantages of playing video games far outweigh the benefits, if any. Now, coming back to what I was talking about, there are so many sports out there to choose from. My point is, even during this very difficult time that we're all undergoing, the COVID pandemic, of lockdowns, of restrictions, of not being able to come to school, the students, we as students and as teachers, we must still find the time to play sports, to work out, to maintain our physical health as far as possible. In conclusion, I would like to remind you all about the recently conducted Olympic Games in Tokyo. Our country's medal tally this year was the best ever.
In all the Olympic Games that we've participated so far, this year has been, the most bountiful in terms of, medals won by our players. And think about the players themselves, the honor that they've brought to the country, to their families, the respect that they've earned from all of us, from society, the government, And I think, when you think about it, I think sports is one of the biggest unifying forces in our country. If you remember when Mirabai Chanu or when Neeraj Chopra won their respective medals in the Olympics, all of us celebrated all across the country, regardless of what religion we belong to, regardless of which region of the country that we come from. And this is what it is. In such times, all of us come together as Indians first and foremost. And so finally, without, I don't want to take too much time, I once again wish all of you on this very, very special day and urge all of you to remember the importance of sports and its benefits to your health and to your body, to your mental equilibrium and to the country as a whole. Thank you all. Jai Hind. प्राचार्य महोदय को प्रेरक विचारों के लिए सादर धन्यवाद। अब मैं आभासी खेल समारोह के मुख्य अतिथि श्री अभय कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। श्री अभय कुमार शर्मा जी टेनिस के पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं एवं वर्तमान समय में टेनिस एकेडमी पुणे में टेनिस प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वागत है सर। Good afternoon, guys. Myself Abhay Kumar Sharma. I'm from Varanasi, UP, but I have my academy as a Abhay Tennis School in Pune, and I'm working here since last 10 years. I've been played district level, state level, and competed many ITA and nationals tournament. I was number one for 3 years of district, 2 years in state, and top 30 in all India ranking tournaments. I have also taught in US for 4 years from 2007 till 2010, and couple of months in Spain and couple of months in UK as well. I was a part of a lot of tournaments which happens in Pune as a referee and as a chair umpire. Well, today is the 29th August. Everyone knows why we celebrate this day, as in the name of great champion, legend, Major Dhyan Chand sir. And it is a great honor I have got from Mr. Anand Kumar and KV Aizawl, Mizoram, to speak something regarding fitness and sports to you guys. Guys, me and Anand knows each other since last 25 years when we were in class 6, and then that's where we started our journey in sports and study as well. But our look up, like we used to play sports a lot besides our study. And me and Anand always speak about what kind of benefit we can provide to kids, student, those who are going to academy, parents, and coaches as well. So we came up with a lot of topic, but I would like to share a few which I am focusing with my kids, and I believe a lot of coaches are sharing this knowledge to the coaches, to the player as well. Guys, the first thing the sports teaches is how to manage the time. I have seen this in this era is a mobile time, internet, which is not bad, but somehow I'm watching the time is not getting that well managed what it used to be 10 years or 15 years back. No offense, but it makes a lot of sense. The sports teaches that time management. When you go to play any sports, there has to be a proper timing. Before that timing you have to report, do your warm up, and etc. Even if you go and compete the tournaments, you have to be before half an hour to report and to see the draw, and then a nice warm up, and then you can go and start playing matches. You just cannot go and hop in any time. So that is very, very important, the time management. And second, it teaches whether it's winning or losing is not a bad thing. Absolutely, it's not a bad thing. Why I can say this? Well, everyone knows the world number one tennis player. It's a Novak Djokovic from Serbia. He's a world number one since last I think 4 to 5 years.
but he still loses 45% of points and lot of games, lot of matches. So that's a part of the life. You don't have to demoralize with this. uh, you will keep facing it. Third, it's a fighting spirit. Fighting spirit. You go to the school, you go to pass out school, you go to college, and then most of the people can get a job also. So there's a lot of problem comes, a lot of stress comes. So you cannot go and get the pressure, problem, stress. It comes automatic. The moment there is a competition in a sports, in a normal life, IT field, doctor, ITNs, you will get a pressure and stress. So sports teaches that also, how to deal with it. And at least it's not the last. Disciplines make a lot of sense as per me. Whatever you do, you are a great player, great fundamental, good talented guy. You're practicing in a nice, perfect academy, but if you don't show the discipline, I think it's going to be tough. We can have a lot of example: Rafael Nadal, Sachin Tendulkar, Bhaichung Bhutia. So a lot of players are playing football, but Bhaichung Bhutia has represented India in a very good level. A lot of good tennis players hitting the same forehand, backhand, but Novak Djokovic, Rafael Nadal, Federer, they are little different. I think discipline make a lot of sense. What to eat, what not to eat, when to sleep, when not to sleep, where to go, when not to go, what is important during the tournament, what is important during the practice. So that's what me and Anand discussing every day. Not every day, but at least a couple of times in a week for sure. So he's putting his best. I'm very happy. I'm putting my best here. And again, I would like to thank you very much, Mr. Anand Kumar and Aizawl Mizoram, to give me this fantastic opportunity to share a few words on Sports Day. Thank you very much, guys. Jai Hind, Jai Bharat. Hope I'll see you guys soon, lively someday. And yes, me and Anand also planning to put some camp. Hopefully we come out from the COVID situation, which we are struggling since last 2 years. Alright guys, all the best. Take care. Bye bye. अभय कुमार शर्मा सर को धन्यवाद, जिन्होंने खेल के महत्व एवं उपयोगिता संबंधित विचार हम सभी से साझा किए। उनके विचार निश्चय ही छात्रों को प्रेरित करेंगे। अब इसी क्रम में मैं विद्यालय के खेल शिक्षक श्री आनंद कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है। सभी को नमस्कार। मैं आनंद कुमार, सहायक शिक्षक केंद्रीय विद्यालय आइजोल, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 29 अगस्त, जो कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में सारा देश मना रहा है, आज ही के दिन एक महानतम खिलाड़ी, देश के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी एक बेहतरीन और बहुत ही उम्दा हॉकी के खिलाड़ी थे और जिनके नेतृत्व में देश ने कई पदक पाए हैं, जिसमें मुख्यतः ओलंपिक के स्वर्ण पदक हैं, जो कि 1928, 1932 और 1936 में भारत को उनकी कप्तानी में, नेतृत्व में प्राप्त हुआ। ध्यानचंद जी की बात की जाए तो वो न कि केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित खिलाड़ी थे, जिनका सम्मान भारत में के लोग ही नहीं, भारत की जनता ही नहीं, पूरे विश्व की जनता उनको बहुत ही प्यार, बहुत ही सम्मान के साथ देखती थी, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनका किसी टीम में होना ही अपने आप में एक जीत को निश्चित करता था। ये मान सकते थे उस वक्त कि हम अगर ध्यानचंद जी जिसके टीम में हैं और वो टीम का जो उत्साह है, जो उसका खेल का जो तरीका है, जो उसका हम कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, वो अपने आप में परम ऊंचाइयों पर होता था और बहुत ही उत्साह के साथ पूरी टीम खेलती थी और जीत को सुनिश्चित करने में उनकी बहुत ही भूमिका होती थी। इस वजह से भी उनको कई सम्मान से नवाजे गए, कई नामों से नवाजे गए। उनको हॉकी विजार्ड भी इसीलिए कहा गया क्योंकि उनका किसी टीम में होना ही अपने आप में एक जीत को सुनिश्चित करता था और इसी वजह से उनको हम लोग हॉकी के जादूगर भी कहते थे।
उनको एक सम्मान से नवाजा गया, हॉकी के जादूगर का सम्मान दिया गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि ओलंपिक का स्वर्णिम काल उनके ही दौर में भारत ने देखा, जब हॉकी में स्वर्ण पदक आना हम सुनिश्चित ही मानते थे। हम बिल्कुल ये मान सकते थे कि अगर ध्यानचंद जी एक टीम में है तो, और बाकियों के सहयोग से और ध्यानचंद जी के नेतृत्व में हॉकी का मेडल तो भारत को मिलना ही मिलना है। धीरे धीरे उनकी उम्र हुई तो वो 1948 तक अपनी सेवाएं, खेल की सेवाएं भारत को दी और 1948 में वो रिटायरमेंट की ओर बढ़े और उन्होंने हॉकी को अलविदा कहा। अंतर्राष्ट्रीय तौर पे उन्होंने हॉकी से संन्यास लिया। लेकिन जितना भी वो खेले, भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली पल रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण पल रहा, बहुत ही ना भूलने वाला क्षण रहा। और आज के दिन भी, जो कि आज अभी टोक्यो ओलंपिक खत्म हुआ और रियो ओलंपिक खत्म हुआ, जो ओलंपिक्स चल रहे हैं अभी, उनको आज के दिन भी हॉकी की जो टीम है या देशवासी हैं या सभी जो उनके चाहने वाले हैं उनको बहुत याद करते हैं, उनको हमेशा से सम्मान करते हैं। और इस सम्मान को देखते हुए हम आज के दिन 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में उनको सम्मान देते हुए मनाते हैं। बात की जाए राष्ट्रीय खेल दिवस की, तो राष्ट्रीय खेल दिवस हम उनके सम्मान में तो मनाते ही हैं, अभी तो हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश का जो पीढ़ी है, जो युवा है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ही, विश्व की सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में रहती है, तो हमको इस युवा को एक खेल की तरफ आकर्षित करने का भी एक उद्देश्य मान सकते हैं हम आज के दिन के लिए, आज के दिन को। और हम ये भी चाहते हैं कि आज के दिन से हम जो अपने युवा हैं उनको खेलों के प्रति उत्साह जगाएं, खेलों के प्रति उनको जागरूक करें, खेलों के प्रति उनको प्रोत्साहित करें, ताकि वो और खेलों में रुचि लें और अपने करियर को अपने व्यवसाय के रूप में इसको आगे बढ़ाएं और अपनी भागीदारी खेलों के माध्यम से भी देश में दें। ये भी हमको पता है कि हमारे देश की आबादी इतनी है, जब लगभग 125 करोड़ की आबादी हमारे देश की है। और बात की जाए खेल प्रतिभाओं की तो हमारे देश में कमी नहीं है, बट किंतु हमारे देश में रुचियों की हमें लगता है कि अभाव है, और इस वजह से हमको खेलों के प्रति अपने युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है और उत्साह देने की जरूरत है, ताकि वो खेलों के प्रति आएं और अपनी जो करियर के जो उनके तरह तरह के विभिन्न प्रकार हैं उनमें एक खेलों को भी अपने करियर के रूप में स्वीकार करें, उनमें भी अपना करियर बनाएं। और इसके लिए हम अपने देश के युवाओं से आह्वान करेंगे कि वो अपने खेलों के प्रति रुचि दिखाएं, तरह तरह के खेल खेलें। तरह तरह के खेल देश में खेले जाते हैं, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो। विभिन्न प्रकार के खेल जो उपलब्ध हैं समाज में, देश में, उनको हमारे देश के युवा खेलें, अपने आप को स्वस्थ रखें खेलों के माध्यम से। और खेल न ही केवल खेलने के लिए बल्कि अपने स्वास्थ्य के प्रति भी हमारी जो जवाबदेही है, हमारी जो कर्तव्य है अपने स्वास्थ्य के लिए, उसको भी वो निर्वहन करें। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास करता है, और स्वस्थ शरीर ही हमारे देश के लिए एक एसेट्स का काम करेगा, एक ऊर्जा के स्रोत का काम करेगा। स्वस्थ शरीर से ही हम अपने देश को एक सफल रास्ते की तरफ ले आ सकते हैं। अगर स्वस्थ युवा रहेगा तो फिर हमारा देश भी अपने आप में ही स्वस्थ कहलाएगा। और स्वस्थता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? स्वस्थता हम जरूर व्यायाम के द्वारा या शारीरिक श्रम के द्वारा या खेलों के माध्यम के द्वारा हम स्वस्थता को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी कड़ी को जोड़ने के लिए हम राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाते हैं। उनको जन्मदिन को एक हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति अपने आप को जागरूक करने के लिए भी हम इस खेल दिवस को मनाते हैं। और हम चाहेंगे अपने देश के युवाओं से और अपने देश के बच्चों से, इस विद्यालय के बच्चों से, कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें और अपने खेलों में रुचि को बढ़ाएं, ताकि हमारा देश आने वाले समय में ओलंपिक में अपनी भागीदारी को और मजबूत और ही ज़्यादा
ज़्यादा भागीदारी को प्रबल तरीके से अपनी भागीदारी को विश्व को दिखाए, विश्व को प्रदर्शन करे। और जैसा कि इस बार हम लोगों ने 7 मेडल जीत पाए हैं, तो आने वाले भविष्य में हम इसको 70 मेडल, 170 मेडल, 270 मेडल तक पहुंचाएं और अपने देश को गौरवान्वित महसूस करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपने खेलों के प्रति रुचि को और जागरूक करें, विश्वास रखें कि हमारा देश एक सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है और ये सफलता हम अपने देश के युवाओं के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ दिन, राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं विद्यालय के संस्कृत शिक्षक श्री संग्राम सिंह जी को अपने विचार प्रकट करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। स्वागत। सभी को नमस्कार। हेलो टू एवरीवन, नमो नमः। मैं संग्राम सिंह, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, संस्कृत, केंद्रीय विद्यालय आइजोल। आप सभी को सर्वप्रथम राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 21 जून योग दिवस, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, उससे पहले 1 महीने पहले से हम अभी जो एक्टिविटी चल रही, गतिविधि चल रही है, फिट इंडिया रन मूवमेंट। डेली आपको दौड़ना है, डेली आपको व्यायाम करना है, डेली आपको वॉकिंग करना है। तो ये जो सभी गतिविधियां हमारे देश में चल रही है, ये जो सभी दिवस हम मना रहे हैं, ये क्या है, सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ठीक है। अब जो स्वास्थ्य है, उसकी महत्ता, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, वो ऐसा नहीं है कि अभी इन पिछले 4-5 सालों में, 6-7 सालों में, 10-12 सालों में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, आपको बोला जा रहा है व्यायाम कीजिए। ठीक है। इसकी जो महत्ता है, प्राचीन हमारे शास्त्रों से ही चली आ रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसकी महत्ता हमारे सामने रखी है। जैसे कुछ ऋषि मुनियों की सूक्तियां हैं, वचन है, जैसे व्यायामो सर्वदा पथ्य, व्यायाम सबसे उचित कर्म है, स्वास्थ्य ही धन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर जो है अगर वो स्वस्थ होगा तो आप अपने कर्म और अपने धर्म का साधन सिद्ध कर पाएंगे। तो हम भी जानते हैं कि स्वस्थ होंगे तो हम सफल होंगे, सफलता के मार्ग पर अग्रसर होंगे। परंतु ये जो क्या है, ये जो 1.5-2 सालों से जो चल रहा है, एक पैंडेमिक सिचुएशन, महामारी की जो कंडीशन हमारा देश या संपूर्ण विश्व जिसे हम बोल रहे हैं, फेस कर रहा है, देख रहा है, तो इसमें क्या है, स्वास्थ्य की जो महत्ता है वो और ज्यादा बढ़ गई है। डेली बोला जा रहा है, एड वगैरह सब में आ रहा है, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखिए, व्यायाम कीजिए, वॉश योर हैंड, मास्क पहनिए। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि आपके स्वास्थ्य पर सिर्फ आप ही निर्भर नहीं है, आपके स्वास्थ्य पर निर्भर है आपका परिवार, आपका समाज, आपका राष्ट्र। ठीक है। तो राष्ट्र बनता है वो कोई अकेले व्यक्ति से नहीं बनता है, राष्ट्र बनता है देश के हर एक उस व्यक्ति से जो देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। अब देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन, अगर आप स्वस्थ होंगे तभी देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर पाएंगे। तो बिना स्वस्थ व्यक्ति के मुझे नहीं लगता हम किसी स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, विकसित राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं, उन्नत राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। तो अंततः मेरा आपसे यह निवेदन है कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इतना व्यायाम कीजिए, निरंतर व्यायाम कीजिए, इसको अपने डेली रूटीन में डालिए, ताकि जितनी भी बीमारियां हैं वो आपसे त्रस्त रहें। ध्यान रहें, स्वस्थ रहकर निरंतर व्यायाम करके आप राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। आवासीय खेल दिवस समारोह के अगले क्रम में हम विद्यालय के होनहार छात्रों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं एवं अंत में विद्यालय के छात्रों द्वारा निर्मित चित्र प्रदर्शनी को भी देखेंगे। धन्यवाद। Good evening, everyone.
I'm Hema Begum of Chair Humanities and I'm a student of Kendriya Vidyalaya Aizawl, Missouri. And I'm here to share you about how all of us can maintain our physical fitness in this current pandemic. There's a lot that we can do. And आज मैं आपको अपने बारे में बताने वाली हूँ. So basically there's a playground near my house and जहाँ पर मैं रोज़ अपनी sports practice करती हूँ. One of my favorite sports is badminton and I regularly practice that. जिससे मेरी body जो है fit रहती है. मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी कि आप भी अपने रेगुलर अपने डेली रूटीन से 10 to 15 मिनट्स ले सकते हैं और आप उनमें योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक्सरसाइजेस भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. और अगर आप नहीं चाहते ये सब प्रैक्टिस करना तो आपको मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्रैक्टिस करें. आप डेली वॉक पर भी जा सकते हैं. आप 20 to 15 मिनट्स वॉक पर जा सकते हैं. आप रोम कर सकते हैं यहाँ से वह जिससे भी आपकी बॉडी पर इफेक्ट होगा जो आपकी बॉडी को फिट रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा. कि ये स्मॉल एक्सरसाइजेस फॉलो करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, रिलैक्स भी हो सकते हैं आप या फिर आप सिंपली कर सकते हैं. आप खड़े हो सकते हैं और खड़े होकर आप सिंपली कोई जंपिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. आप स्किपिंग बहुत सारे एक्सरसाइजेज जो आप